Hello and welcome back to Ethan channel. So today I'm going to start a new topic in C++ and the topic is standard template library. So we will be seeing what STL is and why we use this STL. So before starting the topic, those who have not subscribed the channel, they can subscribe it. And if you are new to C++ language, then you can watch the previous tutorials. Also, if you are interested in lead code problems, so I have started recently the lead code problems, so you can watch it from the beginning. तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक. So what is STL? It is a collection of template classes, okay, and functions. So if someone asks you what is STL, simply say this: it is a collection of template classes and functions. And what is the main purpose of it then? It provides ready-made solutions, okay, for programming problems. So in simple terms, you can say it helps in solving problems like sorting, searching, okay, your daily life problems using data structures like vectors, okay, list, map, queue, and so on. So this is what STL is. Now STL has three main components. So the first component is containers, second is iterators, and third is algorithm, okay. So containers क्या करते हैं? They mainly store data. और क्या करते हैं? उसी डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं in some specific manner, okay. So this is what containers do. They store data, they organize data in some specific manners. So अगर हम एग्जाम्पल की बात करें और कंटेनर्स, तो आपका जैसे हो गया वेक्टर्स, ओके. तो वेक्टर्स एक सीक्वेंस में डेटा को स्टोर करता है, ठीक है. तो ये क्या हो गया? ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका हो गया, ठीक है. मीन्स एक सीक्वेंस में डेटा को स्टोर करना. देन मैप क्या है? ये भी एक कंटेनर है. मैप क्या करता है? वो की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करता है, ओके. नाउ द नेक्स्ट इज इटरेटर्स. सो इटरेटर्स का यूज क्या होता है? टू एक्सेस कंटेनर एलिमेंट, ओके. अगर हमें कंटेनर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम लोग इटरेटर्स का यूज करते हैं. इटरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं. सो अगर हमें जैसे वेक्टर का इटरेटर क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे? वेक्टर, ओके, इंटीजर टाइप, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन इटरेटर कीवर्ड IT, ओके. इटरेटर्स के कुछ मेंबर फंक्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल बेगिन एंड एंड, ओके. सो इनकी हेल्प से हम कंटेनर के उन एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं जिसे इटरेटर पॉइंट कर रहा होगा, ओके. तो अगर सपोज आपके पास एक वेक्टर है इंटीजर टाइप का, ओके, नम इक्वल्स, और यहाँ कुछ डेटा है लाइक दिस, ओके. सो यूजिंग बेगिन एंड एंड वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स फ्रॉम हियर, ओके. सो बेगिन का अगर हम यूज़ करेंगे इस वेक्टर नम में तो हमें 1 ये देगा, और एंड का यूज़ करेंगे तो ये जो लास्ट एलिमेंट है इसके बाद एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमें प्रोवाइड करेगा, ओके. सो वी विल सी दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, देन यू विल गेट इट मोर क्लियर, ओके. देन नेक्स्ट इज योर algorithms. Now the third one is algorithm, and we all know what algorithms are, okay. Series of instructions to solve some particular problems. So in this we have different types of algorithms जो already provided है, okay. हमें खुद से
उन्हें क्रिएट नहीं करना होता, लाइक सॉर्टिंग, सर्चिंग, कॉपिंग, फॉर ईच एंड काउंटिंग। ओके, तो ये सब एल्गोरिथम है जिनका हम यूज़ करते हैं फॉर सॉल्विंग अवर problems. Okay, now container is also divided into three parts. Okay, so let us see what. So first is sequential. Okay, then second is associative, and third is unordered associative. Okay, so sequential में हमारे क्या क्या आते हैं? वेक्टर, लिस्ट, DQ. सो ये हमारे सीक्वेंशियल कंटेनर्स हैं। एसोसिएटिव में हमारे आते हैं सेट एंड मैप। ओके, और अनऑर्डर्ड एसोसिएटिव में अनऑर्डर्ड सेट एंड अनऑर्डर्ड मैप। ओके, सो हम लोग इनको देखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स नाउ one by one. Alright guys, so now let us code. So we will be starting from vectors. Okay, to include vector in your program you have to use its header file like this. Okay, and once you include it using namespace std. Okay, and now here we will code. Now see how we initialize. So we write vector, then its type which is int, angle bracket के अंदर. Okay, then vector name, suppose vector 1. Okay, then equals, then curly brace open और इसके अंदर कुछ डेटा. सो इंटीजर टाइप है तो 2, 7, 1, 8, curly brace क्लोज एंड सेमीकोलन. सो ये हो गया इनिशियलाइजेशन. ओके, ठीक है, आसान है. वेक्टर, देन एंगल ब्रैकेट के अंदर उसका टाइप, देन वेक्टर का नाम विच इज़ वेक्टर 1, और जो भी आपको डेटा इनिशियलाइज करना है कर्ली ब्रेस में. एक तरीका और है इनिशियलाइज करने का, वेक्टर इंट वेक्टर नेम और डायरेक्ट कर्ली ब्रेस. तो 2, 3, 8, 9 लाइक दिस. ओके, इसको हम लोग यूनिफॉर्म इनिशियलाइजेशन बोलते हैं. ओके, सो आई एम यूजिंग सिंगल कोट हियर मीन्स इनिशियलाइजेशन. और एक तरीका और है वेक्टर इंट वेक्टर 3 और सिंगल ब्रैकेट्स के अंदर कुछ यहाँ पे डेटा देते हैं और यहाँ पे हम 2 वैल्यूज़ पास करते हैं. ओके, सो पहली वैल्यू क्या डिफाइन करती है कि कितना नंबर ऑफ डेटा होगा. ठीक है, सो अगर मैंने यहाँ 4 पास किया इट मीन्स मुझे 4 वैल्यूज़ चाहिए, और यहाँ पे सपोज मैंने 10 पास किया तो ये 4 बार 10 को इनिशियलाइज करेगा. ठीक है, तो एक बार फिर से समझते हैं. वेक्टर इंट वेक्टर 3, देन सिंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो पहली वैल्यू है. सो यहाँ पे हम कमेंट कर लेते हैं फर्स्ट वैल्यू मीन्स टोटल नंबर्स ऑफ डेटा we need. Okay, and second value means is the data we need to initialize. Okay, तीनों को प्रिंट करा लो, इजी है. सी आउट vector 1. Now we are going to use range loop. Okay, so let us see how we use it. So for const int ampersand I colon vector 1. Okay, see out I. Alright, so how we read this for loop for each integer I in vector 1. Okay, so ये क्या करेगा, वेक्टर 1 में जो भी एलिमेंट्स हैं ये एक एक करके उन पे इटरेट होगा और प्रिंट करेगा. एंड हियर ampersand I is your reference. Okay, reference variable. एंड कॉन्स्ट कीवर्ड इसलिए यूज़ किया जिससे कि वेक्टर 1 की जो वैल्यूज़ हैं वो मॉडिफाई ना हो. एंड ampersand I इसलिए यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हमें कॉपी ना करना पड़े वेक्टर 1 को. ओके, सो दिस विल प्रिंट वेक्टर 1. सेम हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं वेक्टर 2 के लिए. सो मेक इट वेक्टर 2 वेक्टर 2. ओके,
और सेम हम लोग वेक्टर 3 के लिए कर लेते हैं, 3 3 okay. Right now, so let us run the code now. So here is the output and you can see vector 1, vector 2, vector 3. इसको न्यू लाइन में करने के लिए स्लैश n, here also slash n, run it. So we have the output. Okay, so you can see in vector 3 we have 4 times 10. Okay, so first 4 mean कि मुझे इतनी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज चाहिए, और सेकंड 10 मीन्स कि मुझे जो 10 है वो 4 बार प्रिंट कराना है. सो ये तो हो गया वेक्टर का इनिशियलाइजेशन. ओके, now we will see different methods of vector. Okay, also we will see why vectors are better than arrays, right? Because vectors can grow their size dynamically during execution of the program. Okay, so let's move on toward next code. Alright, so remove this code and now I will show you why we say vectors are dynamic. So first initialize vector. So this is your empty vector. Okay, now see out the size of it. So see out size of vector 1, make it vector 1, vector 1 dot size. Okay, so this will give you the vector 1 size. Also if you want to see the memory capacity for this vector, you can see. So see out vector 1 capacity, vector 1 dot capacity. Okay, so this will show you the memory used by this vector 1. Okay, see out and then so first let us print this. So you can see साइज भी 0 है और मेमोरी भी 0. अब हम इसमें वैल्यूज ऐड करेंगे इस वेक्टर में. ओके, सो फॉर लूप चलाते हैं. फॉर इंट i इक्वल्स 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस. सो वेक्टर में एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए हम लोग पुश बैक मेथड का यूज़ करते हैं. ओके, सो ये वेक्टर का मेथड है. सो लेट्स सी हाउ वी डू इट. सो वेक्टर 1 डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, और इसमें हमने i को पास कर दिया है. ठीक है, सो i की जो जो वैल्यू होंगी इसमें पुश होती जाएंगी वेक्टर 1 में. नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इसको प्रिंट कराते हैं. तो सी आउट एलिमेंट्स इन वेक्टर 1 आफ्टर पुश मेथड. ओके, सो i प्लस 1. ओके, प्लस 1 क्यों कर रहे हैं? इनिशियली i 0 है. ओके, सो अगर हम यहाँ पे i केवल पास करते हैं तो 0 से स्टार्ट होगा, इसलिए मैंने प्लस 1 कर दिया जिससे कि 1 से शो करे. आप चाहो तो प्लस 1 रिमूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. ओके, एंटर. अब हम लोग नया साइज देखेंगे वेक्टर का. सो साइज ऑफ वेक्टर 1 आफ्टर पुश. सो वेक्टर 1 डॉट साइज एंड सेम कैपेसिटी के लिए करना है. सो कॉपी पेस्ट इट. कैपेसिटी ऑफ वेक्टर 1 आफ्टर पुश, चेंज दिस टू कैपेसिटी. ओके, सो लेट्स रन इट. ऑलराइट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है. वेक्टर 1 डॉट कैपेसिटी होगा. ओके, सो कॉपी दिस. सो यू कैन सी वी हैव इनिशियली साइज 0 और कैपेसिटी भी 0. उसके बाद हम लोग ने पुश किया है. ओके, सो 1 पुश हुआ, देन साइज 1 था और कैपेसिटी भी 1 थी. ओके, देन 2 पुश हुआ तो साइज 2 था, कैपेसिटी भी 2 थी, मीन्स मेमोरी 2 थी. देन 3 पुश किया वेक्टर ने तो साइज वेक्टर का 3 हो गया, मीन्स 3 एलिमेंट्स, और कैपेसिटी यू कैन सी 4 हो गई, मीन्स जो मेमोरी है वो डायनेमिकली इंक्रीज हुई है. ओके, फिर हमने 4th एलिमेंट को पुश किया तो वेक्टर का साइज मीन्स 4 एलिमेंट हो गए और कैपेसिटी अभी 4 है. फिर 5th एलिमेंट को हमने पुश किया तो वेक्टर में 5 एलिमेंट हो गए और कैपेसिटी 8 हो गई. सो जो वेक्टर है वो अपने अकॉर्डिंग साइज मेमोरी का देखो इंक्रीज कर रहा है. ओके, मीन्स डायनेमिक मेमोरी जो कि हो रही है, एंड दैट्स वाई वी से कि वेक्टर्स आर डायनेमिक इन नेचर. सो अब क्या करते हैं हम लोग, जो हमने एलिमेंट्स पुश किए हैं उनको प्रिंट करा लेते हैं. ठीक है, सो फॉर लूप चलाएंगे. सी आउट फाइनल वेक्टर लिस्ट. ओके,
वही रेंज्ड लूप चलाएंगे हम लोग. सो फॉर const int and %j, okay, colon vector1 cout j handle और cout handle cout यहाँ से कॉपी करते हैं हम लोग. ओके, सो यहाँ पे बस फाइनल लिख देते हैं, फाइनल एंड फाइनल. ओके, सो रन इट. सो यू कैन सी फाइनल वेक्टर लिस्ट. और सो ये हैंडल यहाँ से हटा दो तो सिंगल लाइन में आ जाएगा. ओके, सो हियर इज द फाइनल वेक्टर लिस्ट. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इज टोटल 10 एलिमेंट्स हैं. सो साइज ऑफ वेक्टर 1 इज 10 और जो मेमोरी है वो देखो 16 है, राइट. सो यू कैन सी हमने वेक्टर में ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम वेक्टर का साइज मीन्स एलिमेंट उसमें इनपुट देते गए और जो मेमोरी है वो भी डायनेमिकली ग्रो हो रही है. सो आई होप इट इज क्लियर व्हाई वेक्टर्स आर डायनेमिक इन नेचर. ओके, next we are going to see how to pop elements from vector. Okay, all right, so now we will see how to delete element from vector. Okay, so here is a vector and we are going to use pop back for deleting elements of vector. Okay, so see out before deletion. Okay, so इसे हम लोग प्रिंट कर लेते हैं using for ranged loop. So for int I colon vector1, okay, and inside it cout I, okay, copy paste this. Now vector1 dot pop back. सो ये क्या करेगा, डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम बैक. ओके, सी आउट इंस्टेड ऑफ बिफोर use /n after deletion. So it will show you the new vector. So run it. So you can see here is the output. 8 is removed from the back. Okay, now we will see how to access vector elements. Okay, बहुत ही simple है. I am showing you here only. So क्या करना होता है, we have to use add keyword. Okay, cout to access the vector element use add. ओके, और ब्रैकेट में हम क्या पास करते हैं, इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट. ओके, सो इफ आई हैव टू एक्सेस सपोज 7, देन आई विल यूज vector1 डॉट एड ब्रैकेट में इसका इंडेक्स क्या होगा 1 handle. Okay, now if I run this, sorry there is spelling mistake, this is E. Okay, run it. So you can see here is the output. To access the vector element use add then index of the element. So answer is 7. So थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, यहाँ पे कॉलम यूज कर लो, so it will look more good. Alright, so अगर किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो add का यूज कर सकते हैं. ऑल्सो इफ यू हैव टू सपोज इस 7 को चेंज करना है तो क्या करेंगे, सी दैट ऑल्सो. सो ऐड का ही यूज़ करके हम लोग वेक्टर की वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं. सो सी हाउ वी डू इट. कॉपी दिस, ओके, एंड पेस्ट इट हियर एंड चेंज दिस बिफोर change. Okay, and now we are going to change. So vector1 dot add, अब मैं 0 इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, 2 की जगह मैंने 1 कर दिया. और vector1 डॉट एड 1 इंडेक्स की वैल्यू को मैंने चेंज करके 2 कर दिया. ओके, अब इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ. सो सेम कॉपी दिस and paste it here and write here after change. Run it. So थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं. ओके, use /n
slash n also here also slash n, now run it. now you can see अगर एक्सेस करना है तो ऐड और उसके अंदर इंडेक्स ऑफ दैट एलिमेंट, ओके, बिफोर चेंज 2768 और फिर मैंने चेंज कर दिया 0 और 1 इंडेक्स को, हियर कमेंटेड चेंज इंडेक्स वैल्यू, ओके. So after change this is 1268 and before deletion it was 1268 and after deletion 126, okay. So this is how you can use at for accessing the element as well as updating the vector values, okay. Also अगर आपको पूरा वेक्टर क्लियर करना है so use clear. Suppose यहाँ पे अगर आपको क्लियर करनी है पूरी वेक्टर so simply use vector1 dot clear method like this, so it will clear the whole vector and you can print it out ranged loop, okay. So for simply copy this and write here after clearing, okay. So if we run it we will get empty vector, so you can see we have no value here for I, okay. So these are the basic methods of vector. Now we will see how to use vector iterators, okay. Alright guys, we are going to see iterators, okay, in vectors. So जिस तरह से अभी हम लोगों ने देखा है ऐड का यूज़ हम लोग करते हैं एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, सेम वे इटरेटर्स को भी हम यूज़ करते हैं टू एक्सेस वेक्टर्स एलिमेंट, ओके. एज वेल एज हमारी जो STL की एल्गोरिथम्स होती हैं जैसे सॉर्ट है, कॉपी है, फाइंड है, ठीक है, इनको डिज़ाइन ही इटरेटर्स के लिए किया गया है, ठीक है, जिससे कि हम इजीली वेक्टर्स पे अप्लाई कर सकें. ऑल्सो अगर हमें वेक्टर में ट्रैवर्स करना है, ओके, तो हम बेगिन और एंड मेथड का यूज़ करते हैं, वो भी हम लोग अभी देखेंगे. और इंसर्शन एंड डिलीशन भी हम इटरेटर्स की हेल्प से कर सकते हैं. इटरेटर्स के मेथड होते हैं इंसर्ट एंड इरेज, ओके. सो उनकी हेल्प से हम लोग इंसर्शन एंड डिलीशन भी कर सकते हैं. सो लेट्स कोड एंड सी with the program, okay. So let's see how we define iterator, okay. So vector int colon iterator I, okay. So ये हम लोगों ने एक iterator को डिक्लेयर किया है. which will point to integers, okay, in vectors. So क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर देन टाइप, हमें कैसा इटरेटर चाहिए, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन इटरेटर कीवर्ड एंड देन इटरेटर का नाम विच इज़ IT. अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं लाइक बिगिन एंड. सो एक फिगर से हम लोग उसको समझ लेते हैं. सो हियर इज द फिगर एंड यू कैन सी these square brackets represent the elements, okay. मीन्स यहाँ कुछ वैल्यूज हैं लाइक 10, 20, 30 जो हमने वेक्टर नंबर से ले रखा है, ओके. ये उनकी इंडेक्स वैल्यू है 0, 1, 2, 3. सो इटरेटर का जो बैगिंग मेथड है वो फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा और जो एंड मेथड है वो रिप्रेजेंट करता है जो लास्ट एलिमेंट है विच इज़ इंडेक्स 3. उसके बाद की पोजीशन को ये डिनोट करता है, ठीक है. तो ये एक तरह का हाइपोथेटिकल स्पेस है, ओके. सो इन रियलिटी अगर आप इसको कोड के हेल्प से रिटर्न करो इस पोजीशन को, राइट, तो ये आपको अनडिफाइंड बिहेवियर शो करेगा, ठीक है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर कोड. सो नाउ सी हाउ वी एक्सेस द फर्स्ट एलिमेंट. IT equals numbers dot begin, okay. So numbers dot begin हमें क्या रिटर्न करेगा, it will return the first element address, okay. And now let us print out cout first element IT handle. इन प्रीवियस ट्यूटोरियल्स ऑफ C++ मैंने डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर आपको पढ़ाया था, ओके. सो ये हमको नंबर्स डॉट बैगिन वेक्टर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस रिटर्न कर रहा है. सो उस एड्रेस पे अगर आपको वैल्यू पता करनी तो उसके लिए हमको डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज़ करना होता है विच इज़ स्टार, ओके. सो इफ़ वी गेट इट प्रिंट, सो रन इट. सो हियर इज द आउटपुट. फर्स्ट एलिमेंट is 10,
Now you want to loop this vector, you can use for loop. So how we use iterator for traversing the vector? C it equals numbers dot begin, okay, semicolon, then it not equal to numbers dot end. सो कंडीशन क्या लगाई? जब तक it नंबर्स डॉट एंड नहीं हो जाता तब तक लूप करते रहो, सेमीकोलन it प्लस प्लस सी आउट and same dereferencing operator to print the whole vector, okay, and see out and then okay. So this will iterate over this vector and print it. So run it. So you can see here is the output 10 20 30 40 50. So using iterator मैंने इस वेक्टर के ऊपर लूप किया और उसे प्रिंट करा दिया. तो क्या करते हैं, फॉर लूप के अंदर IT में जो इनिशियल वैल्यू है वो नंबर्स डॉट बेगिन दी, तो ये हमें फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगा और तब तक इसको रन करना है जब तक नंबर्स डॉट एंड कंडीशन की इक्वल ना हो IT, ओके, देन IT प्लस प्लस देन सी आउट इट. सो इस तरह से हम लोग वेक्टर इटरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं इटरेट करने के लिए. Now let us see insert and erase method, and with this we will finish our this STL first part vectors, okay. Now suppose you want to reverse this vector, okay, so उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका टाइप डिफाइन करते हैं. So here we use reverse underscore iterator, okay. और अब अगर हम इसे for loop के अंदर begin की जगह we use r begin, r for reverse and r end which means reverse end. Also change it here or begin and now run it. So you can see अब ये reverse order में print हो गया, okay. So using reverse iterator then using the method r begin and r end you can reverse this vector, okay. Now we will see how to insert and erase elements in the vector. Alright, so remove this much of code and remove this also. Now see, first let us see the theory of insert, okay. Insert का syntax क्या होता है? So in comment I am writing it insert और bracket में position iterator comma value, okay. पोजीशन इटरेटर क्या होता है? वो पोजीशन जहाँ से हमें इस वैल्यू को इंसर्ट करना है, ठीक है. सो सी हाउ वी डू इट, ओके. सो सबसे पहले हम लोग अपना इटरेटर डिक्लेयर करेंगे. सो वेक्टर इंट कोलन कोलन इटरेटर IT, ओके. नाउ सी सपोज मुझे 30 के बाद 35 को ऐड करना है, ठीक है. तो 30 का इंडेक्स क्या है? 2 मीन्स थर्ड इंडेक्स पे मुझे 35 ऐड करना है. सो हाउ आई विल डू, सी नंबर्स जो मेरा वेक्टर है डॉट इंसर्ट मेथड ब्रैकेट्स एंड सेमीकोलन. अब इंसर्ट के अंदर मुझे पोजीशन इटरेटर देना है, मीन्स वो पोजीशन जहाँ मुझे अपनी वैल्यू को इंसर्ट करना है. तो मुझे मालूम है कि नंबर्स डॉट बेगिन मेथड मुझे फर्स्ट एलिमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है. तो मैंने क्या किया, नंबर्स डॉट बेगिन. अब ये तो हो गया 0 इंडेक्स, ठीक है. अब इसी में अगर मैं +3 कर दूँ तो क्या मुझे थर्ड इंडेक्स ये प्रोवाइड कर देगा, ठीक है. और जो मुझे वैल्यू देनी है 35, दैट्स इट. अब इसको हम लोग प्रिंट करा लेते हैं. तो हमने फॉर लूप यूज ही किया हुआ है, ठीक है. सो रन इट. सो यू कैन सी थर्ड पोजीशन पे 35 इंसर्ट हो गया, 0 1 2 3. अगर मुझे इसे फोर्थ पे करना होता तो मैं +4 कर देता, तो ये फोर्थ इंडेक्स पे 35 ऐड हो गया, ओके. नाउ सी हाउ टू इरेज द एलिमेंट्स फ्रॉम ए वेक्टर. नाउ अगेन हियर थ्योरी फॉर इरेज, ओके. सो इरेज, अगर एक सिंगल एलिमेंट हटाना है आपको तो केवल पोजीशन इटरेटर, ठीक है, उस पोजीशन को यहाँ पे पास कर देंगे. और अगर एक रेंज को हटाना है, सपोज 10 से लेकर 40 तक ये पूरी रेंज को रिमूव करना है, तो हम क्या पास करते हैं, स्टार्ट इटरेटर कॉमा एंड इटरेटर, ओके. सो ये है इरेज मेथड. नाउ सी हाउ वी डू इट. सो आई एम डूइंग हियर, ओके.
नंबर्स डॉट इरेज, सपोज मुझे 30 को इरेज करना है, सो नंबर्स डॉट बेगिन और 30 का जो इंडेक्स है विच इज़ 0 1 2, सो +2, ओके, एंड फॉर लूप चला लेते हैं. सो कॉपी पेस्ट दिस, run it. So here is the output. You can see 30 is deleted from the second vector 10 20 40 35 50. ओके, अब अगर मुझे एक रेंज डिलीट करनी है तो मुझे क्या करना होगा, स्टार्ट इटरेटर और एंड इटरेटर देना होगा. सो लेट्स डू इट हियर below it. Okay, so copy this, paste it here. So this is the, suppose I'm deleting from the 0 index. Okay, so numbers dot begin comma numbers dot begin +3. Okay, now run it. So you can see it has deleted a range from 0 to third index, which means 10 डिलीट किया, 20 डिलीट किया, 30 डिलीट किया एंड 40 विच वॉज अवर थर्ड इंडेक्स 0 1 2 3. सो 40 जो है वो थर्ड इंडेक्स पे. सो आउटपुट क्या है, 35 और 50. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज इरेज मेथड. सो दिस वॉज कंप्लीट ट्यूटोरियल फॉर वेक्टर्स. तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग लिस्ट को कवर करेंगे एंड देन उसके बाद क्यू, डी क्यू, देन मैप एंड सेट. ओके, तो if you have any doubt then please comment in the comment section. Subscribe the channel for more upcoming tutorials. तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. Till then, goodbye and thank you.